Namaskar, welcome again, an aspiration. And by this time, I think we all get to know about the topic that we are discussing on. Yes, the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. And within these weeks, though I'm really fortunate to have so many legendary gurus, dancers. And today, again, I'm really fortunate to have none other Sri Abhay Shankar Mishra ji. I Thank think you. he doesn't need any introduction in the world of Kathak because we all know how good he is, how wonderful dancer he is, and not only that, uh, he has proved his the charisma of training in not only in India but also in Bharatiya Vidya Bhavan, London, where he worked for 15 years, more than 15 years. And I think without further delay, we'll come straight away to Abhay Bhaiya ji. Abhay ji, welcome to my show. And we would like to know your journey and everything. So Thank you please. so much. Thank you so much. Thank you for thinking of my name also and including me in this lovely series. Dear Sandeep, you are working on it and I follow a couple of it. Thoroughly, I enjoyed it. Like last one I saw Krishmon Bhaiya's one. It was very beautiful done and I'm so glad that someone from dance fraternity, this responsibility he's taking him on and providing a platform to all the dancer, in this case maybe mainly male dancer, and I'm so happy to be here and anything which I can share which is part of my journey, my learning, which is still goes on actually. My learning, when I say, like, Yes, it's it's not like, never ending. It's never ending for yeah, any artist. Yes, like yeah. oh, So yeah, I वो जितना मुझे याद है, if you allow me, if you think in yes, English you definitely. think Please carry on. mix. So जितना मुझे याद है कि I belongs to, of course, traditional family of Banaras, like, artist family of Banaras Gharana. My father Gama Maharaj ji and my grandfather Vikramaditya ji and Viku Khalifa ji. All this, I'm so fortunate to belongs to that family. And there are many artists in my family, Professor Rangnath Mishra ji, Suren Mohan ji, like, my father himself was very, very good. And so many people from my family, like my brother, elder brother, Pandit Vijay Shankar Mishra ji, who is musicologist and also tabla guru. So I born and brought up in that family, but my training, formal training started in my Guruji's family, like, Pandey Maharaj ji, Pandey Chacha ji, whose full name was Durga Prasad Pandey ji, which is सुखदेव महाराज जी के बड़े बेटे थे और उन्होंने ही मुझे गंडा बांध 5 साल की मेरी उम्र रही होगी जब वो मुझे गली में खेलते हुए उन्होंने पकड़ लिया और मेरी माँ से बोला कि भाभी जी आपके गम्मा भैया ने मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं, हमें जवानी में बहुत खिलाया है, पिलाया है, रियाज करवाया है और तो मैं चाहता हूँ, उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं चाहता हूँ मैं आपके किसी एक बच्चे को कुछ ट्रेनिंग दूं। एहसान तो नहीं उतार पाऊंगा लेकिन एक मुझे लगेगा गम्मा भैया के किसी एक बच्चे को मैंने कुछ सिखाया। माँ ने बोला वी आर 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। माँ ने बोला अब सब तो इधर उधर निकल गए हैं, सब अपने हिसाब से ही जी रहे हैं, सीख रहे हैं, यही है सबसे छोटा जो मैं 5 साढ़े 5 साल का था, इसको अगर आप ले जा सके तो आप ले जाइए और इसको सिखाइए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वो उन्होंने मेरी उस दिन उंगली पकड़ी, पांडे चाचा जी ने, और करीब 10-11 साल तक मुझे, तो मैं 5 साल की उम्र से लेकर 16 साढ़े 16 साल की उम्र तक उन्होंने मुझे बनारस में ट्रेनिंग दी। और टिपिकल जैसे बनारस घराने की ट्रेनिंग होती है। एंड ही यूज्ड टू से सो मेनी टाइम्स, बेटा ये बैठक देख रहे हो, इस जिस बैठक में तुम अभी रियाज कर रहे हो, यहाँ शंभू महाराज जी ने कितने सालों तक यहाँ पे बैठ के रियाज किया है, रातों रात तक ट्रेनिंग चली है। इस बैठक में वहां पे चौबे महाराज जी का धमार चल रहा था, यहाँ पे किशन महाराज जी बैठ के बजा रहे धमार, 4-4 घंटा 5-5 घंटा। यू सो लकी, गोपी ने यहीं पे रियाज किया है। और तू मतलब यू जस्ट फील लाइक गॉड, यू आर सो लकी, यू स्टैंडिंग ऑन सेम floor, on same ground, and like,
वो ऐसे मिडिल में खड़ा होके पूरा बचपन, क्योंकि वो गोपी भैया के, गोपी किशन जी के मामा जी थे, बड़े मामा जी, तो उन्होंने सबका बचपन देखा था। तो बट सेल्फ वाजंट डांसर, Pandey Chacha, he never danced in his like in his whole life. He used to just teach like तत्कार करो, और खुद वो गाना गाते थे, हारमोनियम बजाते थे सितारा बुआ के साथ, अलकनंदा बुआ के साथ, उनकी बेटी जो अन्नपूर्णा जी थी उनके साथ। तो खुद गाना गाते थे, वंदना, ठुमरी, तराना और पढ़ंत करते थे। So he was more known for his exciting पढ़न, which like when he starts doing पढ़न, people second row से आके फर्स्ट रो में बैठ जाते थे कि पांडे चाचा का पढ़न थोड़ा करीब से सुनेंगे। और लास्ट में उनको जोश आ जाता था। सम आते आते तक अगर एक बोल को वो 2 बार पढ़ंत करते थे, 2 बार बिफोर डांसर इवन डांस, ही यूज्ड टू गेट क्लैप्स, उनको क्लैपिंग मिल जाती थी उनके केवल पढ़ंत पे। लेकिन उतना बिल्ट कर देते थे, धपकतुंगा धागे दिंगे ता धा आदिं ता दे ता कृता तका तू क्या किटे तका ता किटे तका धते टेका, इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। So I still remember as if he's just in front of me. So, and he was such a kind heart, he was such a kind heart person that like मेरे लिए तो भगवान ही जैसे रहे, क्योंकि अब ना तो 1 रुपया लिया मेरे से, ना तो कभी मेरे से कुछ चार्ज किया। दिन भर उनके साथ में रहता था, खिलाते थे, पिलाते थे, जो भी खाते थे मुझे भी खिला देते थे। मैं तो खैर उस समय 6, 7, 8 साल का, करते करते 16, साढ़े 16 साल की उम्र में उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास जो था मैंने तुम्हें सिखा दिया, and now you are allowed to go to my Guruji's house, which is महाराज जी हाउस। तो मैंने बोला महाराज जी मुझे कैसे ले लेंगे, मैंने तो प्रॉपर डांस ही अभी नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग था, जब ये मेरा ये 10 साल 11 साल का ट्रेनिंग चल रहा था पांडे के साथ, तो उसमें वो बीच बीच में 2-3 साल जैसे उन्होंने देखे ना, he used to say very typical term in बनारस कि 100 दंड की जगह पे 1 लपटंड होना भी बहुत जरूरी है। And I used to say, what do you mean by that? कि बेटा अखाड़े में you're doing push-ups like maybe 100 times, but then there should be a match also where you go in the ring and you try that whatever you have prepared with someone else. So in dancer or artist in way, like you should face a stage कि घर पे केवल रियाज करते रहने से नहीं होगा। तो आपने जैसे थोड़ा सा आपने पकना शुरू कर दिया, and that happens with Guruji's permission. You can't be chasing like कि अब मुझे प्रोग्राम दे दो, अब मैं तैयार हो गया हूँ, और ये गुरु को लगता है आप इतने तैयार हो। So my performance journey also, when I was learning there after 4-5 years, when I 11, 12, he started taking me to different temples of Banaras. Like राम मंदिर में लेके चले गए, जालपा जी के मंदिर में लेके चले गए, धूपचंडी में लेके चले गए, गणेश मंदिर लोहटिया में लेके चले गए। उनका सब मंदिरों में साल में 1 बार 2 बार उनका उत्सव होता है, तो उसमें कोई भी उत्सव बिना म्यूजिक डांस के कंप्लीट नहीं होता है। आज का मुझे नहीं पता कितना होते हैं, डीजे बजाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन उस समय तो मतलब वो अगर गणेश चतुर्दशी मंदिर में बनाना तो 1 रात पहले स्टेज लग जाएगा, गली ब्लॉक हो जाएगी, ऑडियंस वहां आने लगेंगी, 50-60 कुर्सी लग जाएगी, फिर आगे लोग पीछे खड़े रहेंगे और आर्टिस्ट खुद से आके हाजिरी देते हैं। बिल्कुल, यू डोंट गो एंड बुक देम। तो उसी टाइम से आपका ये पूरा परफॉर्मेंस वो 10-11 साल से ही शुरू हो गया था बनारस में। मेरा वो बोलते हैं ना, जैसे कि 2 बड़े आर्टिस्ट डांस कर रहे हैं या एक आर्टिस्ट ने गाना गाया, अब दूसरे आर्टिस्ट के लिए मंच सज रहा है, तो उसके बीच में चलो बेटा 10 मिनट तुम भी जलवा बिखेर लो। ऐसे शुरू हुआ था। तो हाँ, वो 10 मिनट का जलवा, और that was very useful. And then when he goes on a stage, he will say 3-4 composition what he has taught me. Then suddenly one composition will come on his mood. And I'm standing there like, God, I haven't learned that one. What to do? And then I said, Pandey Chacha, we used to say like Pandey Chacha, not Guruji, Pandey Chacha, Pandey Chacha, Pandey Chacha. Pandey Chacha, ये वाला तो आपने सिखाया नहीं मुझे, तू तो इनाई सिखा ले वो हमके। अबे तो क्या हो गया, घरानेदार लड़का है, चलो। अब when he will say that, he won't care that microphone is catching everything or not and this and that.
घरानेदार लड़का बेटा बनाओ, करो, यही तो लोग हैं, इनके सामने ही तो करना है। अब I will say it again for you and we try to catch it. Yes. There is no other option. Like, you have to try to catch it. You can't just stand and you face audience hooting that he's not able to dance. You have to throw your hand, you have to do your, Whatever so you, वो भी, yes. हाँ, Somehow you have to whatever, manage the situation. Yes. yeah, like, spontaneously what you can guess around and what you can try, जितना भी उस बचपन में, I'm not saying that was proper training, लेकिन ऐसी जगहों पे, विकट जगहों Yes, पे भी yes, like उनको impromptu, ट्रेनिंग दी गई है। या impromptu, yes. पर अब उसके बाद आप दिल्ली में आए और कथक केंद्र में ही आप एडमिशन लिए महाराज जी के पास। जी, उसके बाद मुझे याद है कि मैं एक बार, नहीं, उसके बीच में मैं 2-2.5 साल लखनऊ में भी रहा हूँ। ओके। तो जब मेरा ईयर 7-8 में था, तो मैं करीब 2-2.5 साल लखनऊ में भातखंडे के सामने एक ऑफिसर्स कॉलोनी थी, जिसमें मेरे रंगनाथ भैया, प्रोफेसर रंगनाथ जी उसमें रहते थे। तो उसमें मैं उनके घर पे करीब 2-2.5 साल रहा हूँ। एंड देन आई वाज वेरी लकी टू सी एंड विटनेस ऑल दिस विक्रम सिंह जी's क्लास, all these senior, like, dancer, Kumkum Dharji and Malvika Sarkar ji, and sometime Kapila Didi, and so many dancers whom I don't even know with name, like, at that time I was so young. तो 2-2.5 घंटे में हर रोज उनके क्लास में कथक केंद्र की जो पुरानी बिल्डिंग है ना, रायनाथ उमाबली हॉल से पहले जो है, जो आजकल ऑफिस बन गया है, उसमें मैं फ्रंट जो रूम था वो विक्रम सिंह जी सर का था, विक्रम गुरु जी का। उसमें I wasn't allowed to take part in the class because it was for all senior dancers. He used to teach only 2.5 और उसके hours बाद for आप all senior. न्यू दिल्ली आए कथक केंद्र। उसके बाद में, हाँ, तो वहीं पे राम मोहन भैया के क्लास में एक दिन मेरा कृष्णमोहन भैया और भास्वती दीदी ने डांस देखा। आई शुडंट टेक दैट देयर क्रेडिट बैक, कि उन्होंने वहां पे मुझे देखा, वहां पे डांस करते देखा, तो उन्होंने बोला इस लड़के को तो दिल्ली में होना चाहिए। तो वेरी काइंडली भास्वती दीदी ने मेरे लिए फॉर्म कथक केंद्र से लेके और उन्होंने भेजा, मैंने फॉर्म फिल करके भेजा, फिर मेरा उसी साल मेरा यहाँ कथक केंद्र में सिलेक्शन हो गया। तो आई स्टार्टेड इन कथक केंद्र इन 86। तो कथक केंद्र So में I आप I एज ए always स्टूडेंट थे try, और नहीं एज ए रिपोर्टरी मेंबर भी थे? नहीं, मैं कथक केंद्र में शुरू किया मैं एज ए स्टूडेंट, and when I went to UK, at that time I was working in Kathak Kendra as a repertory artist under Gitanjali Didi. ओके। So तो you were there for few years. उसके बाद मतलब तब तो आपका यहाँ भी परफॉर्मेंस सब वगैरह चल रहा था, क्योंकि आप कब गए थे, मतलब तब आपका उम्र कैसा था, मतलब एवरेज? यूके में गया था करीब कितने साल का, 2000 में मैं गया था यूके। मतलब नहीं, मैं 2000 ये जानने के लिए मैं पूछ रहा था कि उसके पहले आपका यहाँ इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट आ चुका था? I am still fighting for my establishment, if you want my, like, honest thing, No, no, like, no. You are not that's what, like, established artist. No, I no. am very happy, like, और मुझे जरूर मेरे गुरुओं से और मेरी माँ से मुझे ये मिला है कि बेटा संतोष का फल मीठा होता है। सो बिना, वैसे तो बिलियंस लोग कमा के भी और ब्रिलियंट स्टेज पे भी डांस करके भी लोगों को संतोष मिलता है, और जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, जिस लेवल पे भी आप पहुंचे उसमें आप अपना काम करते रहिए, लेकिन आप जहां पे हैं वहां से आप खुश भी रहिए। बस वो वही एक तो, जरूरी वही चीज असली है। बात है, वही असली बात है। वो अगर नहीं है, केवल आप भाग दौड़ में ही लगे रह गए, आप तब तक भागते रहेंगे, आपके पास पता भी नहीं कि कितना टाइम है आपके पास। बिल्कुल आप ये नहीं कर सकते मैं अगले 10 साल तक भागता रहूंगा, नहीं, आपको नहीं। नहीं पता अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। अभी 10 तो मिनट या 10 सेकंड में क्या होगा वही तो हम किसी को पता नहीं। बस वो अगर तो सोच के कोई ठान ले तो बस ठीक है, नहीं वो तो एक्चुअल बात है। हाँ, तो मतलब अगर ये जरूर है कि मैं जब यहाँ पे था, मैं मेरा काम करना शुरू हो गया था। तो मैं तो जब महाराज जी के पास आया था, मैं डिप्लोमा ऑनर्स में आया था। मैं फिर वहाँ पे 91 तक महाराज जी के अंडर में पोस्ट डिप्लोमा किया। फिर उर्मिला दीदी के पास मैं गया और उनके साथ मुझे HRD से फेलोशिप मिला।
That was great achievement at that time for me. Like, you know, Yes, yes. I started getting first, like, you know, 400 from Kathak Kendra. Then Sahitya Kala Parsad said, like, you know, if, like, you know, I filled a form and I got selected there. So they gave like 600. Then Ministry of Culture, I like next year, then they paid me 1000. Then after a year or two gap, like, you know, 2-3 साल का गैप देने के बाद जब मैंने अप्लाई किया HRD के लिए, और तो उसमें मुझे 6000 पर मंथ मिलने लगा. So in that way, I was getting money, but inside wise, like, because you can't depend on scholarship only. I used to do tuitions and private classes here and there, and slowly I started teaching in school also, lovely public school, which was very local to my Jamnapar area, where I was renting a house there, me and my family. So I was teaching there, like, you know, as part-time teacher, and then in the afternoon I used to work with Aditi ji, Aditi Mangalasi, in the District Code Foundation. So yes, I was working, and I'm very happy to say, just before I left here, I was getting all the shows at that time. Like, you know, suddenly Bharat Bhavan से एक लेटर आ गया कि मैं आपको इस बार हम 15 अगस्त के समय में बुलाना चाहते हैं, और कपड़ा मंत्री जो है उद्घाटन करेंगे, हम आपको 35,000 ही rupees दे पाएंगे. So at that time, like, you know, I was like, you know, God, that's so good. Like, you know, कभी मैंने बायोडाटा भेजा होगा, कभी मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया, फिर खजुराहो से मुझे लेटर आ गया, और आंध्र फेस्टिवल में दीदी के साथ नाचने का मौका मिला. महाराज जी ने अपने टीवीएस गमा में अदिति के साथ ऑल दिस मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस्टर ग्रेवियारा, all this like Z Millennium show, that was like, you know, that Golden 90, period. Yes. let's say, हाँ, like 93 94 से लेके, और उसी में मैं बाहर आना जाना भी मेरा लगा रहता था. तब तो खैर मुझे पता भी नहीं था कि मैं कोई बाहर सेटल हो जाऊंगा, लेकिन कुछ मतलब ऐसा, पूरा जैसा एस्टेब्लिशमेंट आप, आ चुका था, मतलब एक डांसर को जैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि वो तो जी जी, अगर हाँ, क्योंकि वो एकदम फील्ड में एंट्री हो चुका था. बिल्कुल. एक तरीके से हो गया था. और लोग, लाइक, यू नो, अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे थे, लाइक क्रिटिक्स लाइक लीला दीदी, मंजरी जी, और सारे लोग अच्छी अच्छी बातें लिख रहे थे. कथक केंद्र के फेस्टिवल्स में मिलने लगा था, तो आई एम शरद चंद्रिका एंड ऑल, लाइक, नो. तो अच्छा हो गया था. लेकिन वो एक ये था कि प्रोग्राम तो एक परमानेंट, वो तो आज मिला कल नहीं है. सो यू लुक फॉर अ जॉब ऑल्सो. यस. तो वहां पे वो जो एक आ जाता है कि एक आपकी बंधी हुई इनकम. हमारे पास दिल्ली में अपना मकान भी नहीं था, तो हमें रेंट भी करना होता था, रेंट भी पे करना है, फिर खर्चा भी चलाना है, फिर फैमिली में 5-6 लोग रहते थे, तो हम सबको ही मतलब कुछ ना कुछ करना था. और प्राइवेट ट्यूशंस पे also you can't depend. So I got selected actually from ICCR from Moscow, Dusanbe. That was the place, like, you know, in 2000, and I was my name was in first top 3, like, you know, gurus. um, I was so happy, and I was planning to join that in 6 months time, when suddenly I got offer from Bhavan UK, and they said that we have seen your biography and all this, like, you know, we would like to offer you. And I said, I'm happy, but can I come only for 1 year? And then they said, yeah, you can come for 1 year. First, हमारा 1 ही साल का contract होगा. उसके बाद, if you are happy, we will extend for 2 years more. So with that intention, I went there, that before I go to Moscow, I will just get a little bit of, like, you know, used to of, like, you know, foreign language. क्योंकि इसके पहले हम जब भी जाते थे, मैक्सिमम मैं गया था, जो चाइना में गया था मैं गांगजाओ, वो हमारा करीब 9-9.5 महीने का था, which we went, like, you know, 30 artists together, 15 from North Indian classical, Kathak and all musicians, and 15 Bhangra group. They went, like, you know, their own. तो वहां पे हम पहले 4 महीने के लिए गए, फिर 5 महीने. तो वो मेरा लॉन्गेस्ट पीरियड था. नहीं तो कहीं पे भी 1 महीना, सवा महीना से ज्यादा हम टिके नहीं है. कभी 1 हफ्ते के लिए गए, कभी 8 दिन के लिए गए. तो लेकिन फिर जब मैं वहाँ भवन में गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. भवन का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा, बहुत आर्टिस्टिक है. वहाँ 8 फुल टाइम मेन गुरुज हैं, जो 4 नॉर्थ इंडियन में, 4 साउथ इंडियन में. एंड एज फार एज आई हैव विटनेस, लाइक, यू नो, कि outside India, that is one of the prime institute, Bhavan Yes. Center UK. It's one of the prime institute, and I have visited so many other institute also, because I travel a lot.
लेकिन इतना डेडिकेशन, इतना विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग, लाइक कहीं कहीं मैंने देखा है कि है तो कथक का क्लास, लेकिन अब जब उनका 15 अगस्त आता है तो उनको थोड़ा सा फोक भी सिखाना पड़ेगा, शायद उनको थोड़ा सा फिल्मी भी सिखाना पड़ेगा, बॉलीवुड नंबर भी, लेकिन भवन में ऐसा कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को मिलता है। आप अपनी खुशी से करना चाहे वो आपको रोकते भी नहीं है। अगर आपको कोई एक इंडियन क्लासिकल, लाइक जैसे महाराज जी का देवदास का ठुमरी है, मुझे लगा कि शायद फिल्म में है ये, लेकिन मैं अपने सीनियर मोस्ट पूरा ग्रुप को क्लासिकल, ये हाँ। सिखाना चाहता हूँ, और लाइक ये मेरे लिए कथक की ठुमरी है। तो हम्म। मैंने सिखाया, तो मुझे किसी ये ने भी नहीं बोला कि अरे आप क्या सिखा रहे हैं, ये तो फिल्मी है। लेकिन मैंने इतने सालों में कभी और दूसरा फिल्मी गाना नहीं सिखाया, तो किसी ने मुझे बोला नहीं कि हम्म। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं, अपबीट गाना क्यों नहीं सिखाते हैं। So that way we were very protected, and I must mention Dr. Nand Kumar ji. His name is very learned and great Yeah, I scholar know. of Sanskrit and Veda. You know him very well. So he has been very guiding person in Bhavan's aim Yes. for what Bhavan is established for 35 years. So I was very happy. But in 2016, I felt like, ki I'm doing same thing for last 16 years. Now I should do something else. And this is one life, like, where I'm human. I don't know what is going to be next birth. So when I still have some time left and I have some energy left, let's go to motherland and try and explore something different. So, and he said, Abhayji, for any, like, artistic development of yours, so we will always support. So now two of my senior students, They are Deepika Katran continuing and the training yeah, they are at continuing Bhavan. the Yeah. RO. And I'm here because I came at that time in 2016. I was supposed to finish my PhD, which I'm doing under scholar Guru Puru Dadish ji के अंडर में, and वो मेरा हो गया, मैंने थीसिस जमा कर दिया Wow. है। तो भातखंडे से कभी भी बुलावा आ सकता है, तो let's see what happens. So but that Advance was one main congratulations. reason. Yes, and then yeah, so that's what my journey till Yes, now. yes. It's very like interesting. And then like now I'm coming to my another point that I'm asking to each and everyone. Like how, according to you, how one should balance between the artistry and finance? Like for example, like Mm. in in his like starting period, like if you are getting a certain amount, like how should you distribute like in between the musicians and presentations and whatever, and if the budget is not permitting to cover up everything, so what will be your like decision, like to invest by your own or to manage within that fund? What about that? See, in my opinion, once in a while, if you have to invest like, couple of thousand rupees here and there just to make your production more valuable and more like, one shouldn't be holding money like, कि नहीं मैं तो खर्चा नहीं कर सकता, because after all through dance you have earned everything. Yes, yes, good. तो उसमें चाहे आपके प्रोडक्शन की लेवल पे अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कहीं पे आपको अपने पॉकेट से उस समय देना पड़ गया, तो आपके पास अगर है, भगवान ने आपको दिया है 5-10 हजार रुपए, अगर आपको बिल्कुल, लगाना है तो लगाइए। बिल्कुल। लेकिन अदरवाइज आप प्रोग्राम अपने पॉकेट से पैसा खर्च कर करके नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन यू आर नॉट प्रोफेशनल। Yes. एंड प्रोफेशनल, दैट्स व्हाट महाराज जी हैज सेड, प्रोफेशनल इज व्हेन यू गेट पेड। पर जब मतलब जो नए जब काम करते हैं ना, जो स्टूडेंट्स लेवल में जब काम करते हैं, तो उनका सोच कैसा होना Yeah, चाहिए? क्योंकि in the शुरुआत beginning you have to invest. Yeah, in the beginning you have to invest. In the beginning, if you want to take good tabla player, okay, because you think like, he gels with your style of dance, and you don't have anyone ready to pay fees for tabla player, you might have to pay from your pocket. yes, If you suppose somebody has paid you, somebody has given you auditorium, light,
एंड ऑडियंस का मिल गया, लेकिन आपको बैक स्टेज जो आपका खर्चा है वो आपको खुद से करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर लाइक about to be professional or semi-professional, then you have to prove yourself. To prove your work, you may have to invest. जैसे हमें कुछ लिखना है तो मैं नोटबुक तो खरीदना ही होगा. बिल्कुल. तो अच्छा, तो हाँ, इसके बारे में मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे कि कोई जिनके पास फंडिंग है, फंडिंग मतलब सेविंग्स हो या जो भी है, या सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट की है, जी, पर जी. वो अगर नहीं है, तो उनको कैसे अपना मतलब दिशा के लिए उनका प्लानिंग करना चाहिए, ताकि वो ये जो रिक्वायरमेंट है, एक परफॉर्मर बनने के लिए, तो वो कैसे करे? मतलब वो ग्रुप में काम करते हुए वहाँ से वो मतलब कोई से मतलब एक फंड क्रिएट करे, या वो सिखाए? तो इसका मतलब ये इसके लिए आपको ये क्या? मिक्स मैच किया जा सकता है. इसको मिक्स मैच किया जा सकता है. बिल्कुल। जैसे हमने किया है, जैसे हुँ, हमने किया है. हुँ। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में पहली बार लाइक हॉस्टल से निकला, मैं कथक के हॉस्टल से, और ये हुआ कि अब मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाहर 2,000-3,000 रुपए किराए के देने पड़ेंगे, बाइक में पेट्रोल भराना पड़ेगा, तो खाने के लिए चाहिए. तो you can't depend on only performances with the group. Kathak Kendra used to call us sometime, like 15 दिन का कहीं प्रोजेक्ट है तो आप 15 दिन रिहर्सल कीजिए, उसके बाद 1-2 प्रोग्राम कीजिए, आप बेंगलोर जाइए, प्रोग्राम करके आ जाइए, आपको 2,500 मिल जाएगा. सो दैट इज ओके, दैट इज लाइक साइड. लेकिन एक परमानेंट, एक लाइक रेगुलर इनकम के लिए आपको अगर ट्यूशंस मिल रहे हैं, you should start, because that Yes, is yes. also giving you Even something. I did like Because that only. Yes. yeah, we all have done it like that. Because Yeah, see, I yeah. remember there was a time when I was teaching, I used to maintain a register, and like कि कहाँ पे कितने सफदरजंग इनक्लेव में, तो प्रीतमपुरा में, तो यहाँ, तो वहाँ जमुना पार में, तो प्रीत बिहार में. I had वो एक 85 फिक्स होता students. है ना, वो एक फिक्स होता है, क्योंकि Yeah. हाँ, और कोई भी डांसर यहाँ मतलब Mm. मेल फीमेल का कोई अंतर नहीं है। कोई अगर चाहते हैं नहीं, कि अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, तो इसी रास्ते से ही उनको इनिशियली चलना है। फिर बाद में जाके तो अगर उनका प्रोग्राम बढ़ते जाए तो वो बात अलग है, वो कैसे उसको मैनेज अब करेंगे जैसे आगे कथक बढ़। केंद्र में हम लोग का 5-6 बजे तक क्लास हो गया. हुँ, when like हमारे पास 5-6 बजे तक रिहर्सल खत्म हो गया. उसके बाद अच्छा, सुबह से लेके आप शाम तक नहीं कर सकते क्योंकि लाइक सुबह योगा क्लास है, फिर डांस क्लास है, फिर वोकल क्लास है, फिर पखावज क्लास है, उसके बाद महाराज जी का रिहर्सल्स है. तो आप उसके पहले तो कुछ नहीं कर सकते. डे टाइम में यू कांट वर्क इन एनी स्कूल और लाइक public school or anywhere. So evening time is only left. That is your like so that is also you have to manage in such a way that you can't be doing so much, get used to of earning money that you compromise your practice you time. can't practice. You have to maintain your riyaz practice. Yes, that is true. Yeah, Otherwise, yeah, like in future, you can't be like in such a way so that people can see your yeah, dance as a yeah, dancer. Yes, exactly, exactly. So you have yeah. to maintain your riyaz also. You have to Learning maintain मतलब finance. जो Yeah. तालीम तालीम ये सब कुछ बैलेंस करते हुए ही चलना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल है। एक तरह से मुश्किल कमी हो हो जाता जाने से, हाँ, बिल्कुल। है. जी, बिल्कुल। जी. नहीं, नहीं, अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आने वाले जो जनरेशन्स है, इनके लिए आपका क्या सजेशंस रहेगा? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कथक का फ्यूचर और आने वाला जनरेशन. मैं तो आने वाले जनरेशन से पहले मैं अपने गुरु जी को, महाराज जी को याद करना चाहूंगा कि मेरी लाइफ, जो उनके आशीर्वाद से जो एक दिशा मिला है मेरी अपनी लाइफ में, जो उन्होंने डांस वर्ल्ड मेरे सामने एक ऐसे खोल के रख दिया, एक मतलब एक क्या बोलते हैं, विशाल, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी का रूप था. विषड हाँ, तो वो मतलब कथक का वो एक महाराज जी ने हमारे सामने एक मुझे याद है 86-87 में जब महाराज जी सिखाने हैं लगते थे, लाइक दो एट दैट टाइम ही वाज ट्रैवलिंग सो मच दैट एवरी अदर डे ही हैज शो समवेयर हियर एंड देयर. बट उसके बाद भी हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास भी इवनिंग में वो लेते थे सीनियर लोगों के साथ.
वो जो उनसे हमें मिला है, और मैं तो देख रहा हूँ कि कितने जनरेशन से वो सबको इंस्पायर किए जा रहे हैं। और मैं तो अपने सबसे पहले महाराज जी को उसके लिए बहुत सारा प्रणाम। यस। क्या कहते हैं, प्रणाम करूंगा। और मैं साक्षात दंडवत करना चाहता हूँ उनको कि हम सभी के लिए उन्होंने, और मुझे, हम सबको लगता है हमारे लिए खास, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने डांस के इतने ब्रांचेस खोल दिए हैं, इतना ओपन, एक खुला आकाश जैसा कर दिया है, एक लाइक विश्व रूप जैसा, कि आप किसी भी ब्रांच को पकड़ के आप एक केवल मनन चिंतन करते रहिए और उसमें आपको वो मजा मिलने लगता है। तो चाहे वो सिखाना हो, चाहे वो परफॉर्मेंस करना हो, चाहे वो कोरियोग्राफ करना हो, चाहे वो अप्रिशिएट करना हो दूसरे के काम को, आप सब में ही यू कैन हैव मोर एंड मोर। तो मैं अपने गुरु को सबसे पहले, और आने वाले जनरेशन में जो लोग कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, ऑल ऑफ देम, ऑल ओवर यस। young artists, though we are also very young, मगर even younger than us, and हर घराने से कि बनारस के भी बहुत अच्छे बच्चे कर रहे हैं। विशाल कृष्णा है, सौरभ हाँ, गौरव हैं, एक वो भी एक सब तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ शंकर है, इस शो में जितने सारे ये- को आ सकता हूँ, लेके आ सकता हूँ, वो मेरा कोशिश है। क्योंकि ये- अभी ये लॉकडाउन में यंग सब लड़कों घर पे में बैठे हैं, तो इस दौरान सबके साथ कनेक्शन बन रहा है। और इसके बाद मैं तो दूसरा सेशन भी चालू करने जा रहा हूँ। वो इंटरेस्टिंग और सस्पेंस है, पर आएगा। वो हम्म, नहीं तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो और लखनऊ में हमारे दीपक भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका तो खैर जवाब ही नहीं है। तो इज वेरी, नहीं इज नहीं इन अ सब। डिफरेंट क्लास टुगेदर। दीपक महाराज हमारे साथ ही, हम लोगों ने बहुत साल कथक में सीखा है, बट ही इज सो फार अहेड ऑफ जयपुर में। अभिमन्यु लाल भी अच्छा कर रहे हैं, हरीश जी अच्छा कर रहे हैं, तो सभी यंग नहीं, लड़कों में। और मेरे ख्याल से जैसे कि जो जहाँ है वो घराना ठीक है, सबको नमन करते हुए, क्योंकि पर एज एन लाइक आर्टिस्ट, एज अ डांसर, एज एन ह्यूमन बीइंग, like everybody is so like generous, and like everyone is happy, and that is most important. That is वेरी most वेरी important. And like in this like forum, everyone is sharing their thoughts and everything. It's like I am really really grateful to each and everyone, like they are sharing their thoughts, so that who are watching, like they can be inspired with this discussion, and they can be motivated, and they can get the energy to carry on this legacy of Kathak. Yes. बहुत बहुत सही। अब एज आई सेड, इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय यू संदीप भाई। आपने बहुत अच्छा काम किया, और आप तो खुद ही इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं। मैंने तो आपको कई बार देखा है, आप इतना अच्छा काम करते हैं। अभी लास्ट शो मुझे याद है, महाराज जी के ही जन्मदिन में आपने किया था कमानी में। आई रिमेम्बर दैट श्रीलेखा जी वाज आल्सो देयर। हाँ हाँ, मेरे गुरु जी। हाँ सच नाइस ऑफ यू, आस्किंग योर गुरुजी टू कम, एंड सच अ लवली लेडी। तो मेरी वाइफ काकोली जी, हाँ हाँ, काकोली वो ने भी तो उन्हीं दीदी के से पास सीखा है। सीखी थी। हाँ 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 हाँ। आपकी उनकी No, no, ट्रेनिंग वही हुई I'm फिर in वो that way. से। I'm really, really blessed to have such a like wonderful guru like my mother. I always say like my this body has been like gifted by my mother, but like my dancing body is by my guru, and then definitely like whatever I am doing, it's all because of their. So यही मैं एक अपने और गुरु जी उर्मिला दीदी का, गुरु उर्मिला नागर जी का मेंशन करना चाहूंगा। उन्होंने भी मुझे बहुत समय पे अपने, मुझे याद है जब मुझे फेलोशिप मिला था, मुझे जयपुर घराने सीखने की इच्छा हुई थी। मैंने दीदी के पास बोला, मैंने बोला दीदी आप मुझे, मैं अभय शंकर हूँ और मैं महाराज जी से सीखता हूँ, मैं आपसे कुछ साल जयपुर घराने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, कब से आ जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला आप मुझे स्वीकार करेंगे? उन्होंने बोला हाँ हाँ बेटा, मैं तो तुम्हें देखती हूँ, तुम तो बहुत अच्छा करते हो, तो आ जाओ। मैंने बोला कब से आ जाऊँ? बोले अब आ गए तो आ ही गए हो, जब से आ गए तभी से। उसी दिन से उन्होंने शुरू कर दिया। मैंने पूजा, खैर फॉर्मल पूजा मैंने दूसरे दिन किया, थर्सडे को किया था मैंने, लेकिन उसी दिन उन्होंने, तो इतनी सहृदय हैं और इतना प्यार से उन्होंने मुझे
कहने को तो टेक्निकली अगर आप बोलो तो 2 साल सिखाया है शायद, लेकिन वो 2 साल सिखाया नहीं है। वो जर्नी अभी भी ऑन है। अभी भी जब मैं उनसे मिलता हूँ गुरु पूजा को, या ऐसे भी बात कर लेता हूँ, कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था, अभी भी वो 10 मिनट 20 मिनट जो बात होती है उसमें 2 4 5 लाइन ऐसी जरूर वो कह जाती हैं जो मेरे दिमाग में रह जाता है। और तो वो जर्नी, वो सीखना अभी भी चालू है। तो मैं हाँ, उनको भी बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार करते हुए याद करना चाहूंगा। और मुझे पता है उन सबका आशीर्वाद बना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो नहीं होने से तो मतलब जो कुछ भी हो रहा है बस मैं तो ऐसे सोचता हूँ, क्योंकि मेरे जो जी कुछ भी हुआ, क्या बोलूँ? I would request you to say like any like compositions, and also like मतलब अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इसका इफेक्ट जी कैसे, मतलब आपको ये क्या महसूस हो रहा है, और ये ऑनलाइन जो सिलसिला अभी चालू हुआ है, इसके बारे में जी। आपका क्या मतलब विचार है? लॉकडाउन तो जैसा आपको पता ही है, पूरी विश्व इससे, इस महामारी से ग्रसित है। और लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड लाइक दिस आर फ्यू वेरी रेगुलर नॉर्म्स फॉर दिस डे, लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड इज सेम। इसका इफेक्ट आर्टिस्ट के ऊपर तो अच्छे से नहीं पड़ा है, बुरे से ही पड़ा है। सबका जितना प्रोग्राम, जितने टूर, जितने बुकिंग थे, सबके कैंसिल हो गए। तो ये सारे लाइन में ही ये हुआ है। लेकिन आर्टिस्ट लाइन मुझे लगता है, मुझे दो ही लगता है, या तो वो जो हमारे बेचारे मजदूर भाई बहन हैं जो रोड पे ऐसे चले आए, उनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, इस सिटी से उस सिटी जाने के लिए, वो ग्रसित हैं। या तो फिर हम सब लोग ग्रसित हैं, कि जिनका सारा पूरा साल, जैसे अभी हम लोग को मई जून में हम लोग को यूके एंड यूएस का हमारा एक ट्रिप होता है। जैसे मेरा शंकर डांस एकेडमी कैलिफोर्निया में एक स्कूल है, 10 साल से 11 साल से वो चल रहा है। तो उसमें मैं विजिटिंग टीचर हूँ, तो मैं साल में 2 3 बार जाता ही हूँ। अब वो मेरा 2 बार का तो अभी तक कैंसिल हो गया है। मुझे अप्रैल में जाना था, वो कैंसिल हो गया। मुझे जून वो एंड तो में है जाना था, वो सबका ही। कैंसिल हो गया। मैं भी तो, मेरा तो टूर चल अब रहा था, उसी से वापस आ गया, मतलब टूर हाँ, बीच में खत्म I know। करके आ गए। तो इसका इफेक्ट तो बुरा ही पड़ा है सबके ऊपर। लेकिन अब ये है कि आप अपने घर में सेफ बैठे रहें, पॉजिटिव रहें, बिल्कुल। थोड़ा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें, ताकि भगवान न करे कुछ इधर उधर हो ना हो। आर्टिस्ट आर लकी बिकॉज दे वर्क ऑन समथिंग व्हाट इज देयर पैशन। और उस पैशन में, डांस और म्यूजिक में, वो अगर कंटिन्यू करें, जैसे कि अभी एक्स्ट्रा टाइम मिला है, या एक्सरसाइज ही करे, या ट्रेडमिल ही करे, कुछ तो करे, जैसे उनका थोड़ा सा एक फिटनेस लेवल स्ट्रांग रहे। और जितना ऑनलाइन वो काम कर सकते हैं, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे तो अभी भी बाहर के क्लास चल ही रहे हैं। और जो हमारा बच्चे भी नहीं ऐसे आ चलता सकते, है। हाँ, जो बच्चे नहीं वहां पे आ सके वर्कशॉप में, क्योंकि हम लोग नहीं जा सके, वो सब अपने अपने कॉलेज में या घर में जहाँ पे भी हैं, हफ्ते में 1 2 दिन करके चलता ही रहता है। तो मेरे तो यूके में भी क्लास चल रहा है, यूएस में भी क्लास चल रहा है, इंडिया में भी 1 2 जगह सिखाने की बात चल रही है। लेकिन बहुत ज्यादा भी काम नहीं लेना है, क्योंकि पता चला फिर आप अंदर बैठे बैठे स्टक हो गए। तो जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर करें। हम्म। और बाकी टाइम जस्ट बी पॉजिटिव एंड लाइक वेट फॉर something good and very soon Yes. to happen. With that's note, I think I would like to conclude today. And then of course आपको धन्यवाद करते हुए, मैं नहीं, सारे नहीं, नहीं। अपने सीनियर्स, अपने सारे गुरु और सबको याद करते हुए, प्रणाम करते हुए, और सबसे बोलूंगा कि आपके प्रोग्राम को फॉलो करें, देखें। और सारे डांस वर्ल्ड को, मतलब केवल कथक नहीं, केवल मेल नहीं, जितने भी डांस हैं, जितने भी बिल्कुल, बिल्कुल, आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। सबके ऊपर थोड़ी सी दया दृष्टि रखे हैं। सबको उनका समय समय पे फीस देते रहे, और उनको काम देते रहे। तो because after all, like all these are important thing, like Yes. guru to they go ahead of the, like they're like out of way to help their kids, their students. Like when gurus are also in need, students should come also out of their way to help, like artists. हम तो बहुत लकी है कि हमें भगवान ने इतना दिया कि हम 2 समय की रोटी खा पा रहे हैं। लेकिन ये सुनने में आता है कहीं कहीं लोग, ऐसे लोग भी हैं जिनको उसके लिए भी
स्ट्रगल है, तो मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा। हम सबसे उम्मीद करेंगे कि हम सब अपना काइंड हार्ट नहीं, वो तो उस हम सब कर आर्टिस्ट रहे हैं, अपना जितना हो सके तो सब कर रहे हैं, बस उसी से ही, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से तो जो करना है वो करेंगे और कर भी रहे हैं। पर हमारे जरूर। अपने हिसाब से आसपास में जिनको देख सकते हैं उनको भी अगर हम थोड़ा बहुत करें ना, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब बहुत जरूरी है, बहुत ये जरूरी है। एज लाइक सोसाइटी में रहने के लिए एक हमारा वो भी होना चाहिए, एक जिम्मेदारी हाँ, भी बनती है। ये सबका ही आप जिम्मेदारी बनता है, जिनके आप पास कैसे थोड़ा आराम बहुत से जी जी कुछ जी कर जी। सकते हैं तो करना चाहिए। बहुत जरूरी, बहुत क्योंकि जरूरी। वो भी ब्लेसिंग समझ के, क्योंकि कोई अगर करने के लिए वो जगह पे है, तो वही तो उनके लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वो करने कर सकते हैं, क्योंकि आप तो चाहने से ही तो हम सब कोई कर नहीं सकते ना। अगर कर सकते हाँ, हैं, भगवान ने आपको अगर थोड़ा बहुत मतलब करने के लिए दिए हैं, तो वो अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे ही मतलब सबको संतुलन बना इसी सकते। संदीप जी, इफ अलाउ मी, इसी बात को मैं रहीमन की एक लाइन से कहना चाहूंगा, जो मेरी माँ मुझसे कहती रहती थी कि रहीमन वो नर मर गए जो कछु मांगन जाए। कि एक तो अगर आपके पास कोई कुछ मांगने आया है, तो अंदर से ही पहले वो कितना परेशान होगा। उसका एक तरीके से एक सोल तो मर ही गया होगा कि उसको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। सो रहीमन वो नर मर गए जो कछु मांगन जाए, और उनसे पहले वो मुए, उनसे भी पहले वो मर गए जो वो कुवत रखते हुए, अपने पास रखते हुए, उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकलत ना आए, जिसने उस मांगने वाले को मना कर दिया उसके पास होते हुए भी। तो एक ये हम इस लाइन को अगर हम अपने आत्मसात कर ले, और जितना भी हो सकता है, हम वी कांट बी हर्षवर्धन नो, कि नो, हम नो। सबको बांटते फिरे फिरे, नहीं, लेकिन नहीं, अपने नहीं, लिए भी ऐसे रखना है, अपनी फैमिली को जितना भी भी रखना है। मतलब अपना अपना को बचा के रखते हुए जो कर सकते हैं वो जी अगर सभी करे तो, क्योंकि अभी जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम से हम चल रहे हैं, तो यही तो जी। है ना कि ऐसे ही करने से मेरे ख्याल से इस हालत से हम सब एक साथ निकल के जा सकते हैं। निकल निकल थैंक यू पाएंगे। भैया। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यू, मच, थैंक थैंक यू ऑल।